Hello, everyone. Very good afternoon to you all. We are almost done with our topic of organism and population, and now we are going to discuss last topic of our unit of organism and population, where we will be talking about population interactions that constitute of various interactions that can be interspecific as well as intraspecific, such as mutualism, symbiotic relationships, competition, predation, parasitism, commensalism, amensalism, etc. Where we will be talking about the modes of parasitism, the adaptations that parasites have, the adaptations that predators have, how do they avoid predation, etc. etc. I am welcoming you all to Shita's Botanic, and especially I would like to thank you because it has been almost 1 month that I joined the YouTube channel, and because of your blessings, inspiration, motivations, your sharings, and all your cooperation, I have reached 300 plus subscribers today. And I really hope, I really believe that we will keep working with the spirit together to grow each other in form of education, in form of YouTube subscribers, in form of many more things. Now, talking about the topic, let's talk what is population interaction. Can you think of any natural habitat on Earth that is inhabited just by a single species? We all the species live on Earth. क्या आप अर्थ पे किसी ऐसे हैबिटेट के बारे में सोच सकते हैं जहां पे सिर्फ एक ही स्पीसीज या एक ही तरह का स्पीसीज रह रहा हो? आई बिलीव that such situation is even inconceivable. That is some kind of unbelievable situation because there is no such habitat जहाँ पे एक ही तरह के species रहते हो या एक ही single species रहता हो, क्योंकि किसी भी स्पीसीज के लिए उसकी मिनिमल रिक्वायरमेंट ये होगी कि उसको और स्पीसीज मिले ऑन विच इट कैन फीड, be it plant, be it animal, depending on the type of mode of nutrition, heterotrophic, autotrophic, carnivores, omnivores and herbivores. किसी भी एक स्पीशीज की ये मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है कि उसको कुछ और स्पीसीज मिले जिसपे वो फीड कर सके, जिसको वो कंज्यूम कर सके और अपना सर्वाइवल कर सके. Even an autotrophic organism like plants, they cannot survive alone because वो बहुत सारी other kind of activities just as decomposition activities of soil microbes to fulfill their inorganic nutrient requirements, plants need them. Also, they depend on animal agents for their pollination. By this, we can say that in nature, animal, plant, and microbes do not and cannot occur in isolation. They interact in various ways to form a biological community. और इस तरह के interactions where the populations of two or more different species interact is known as interspecific interactions. इट इज ऑब्वियस कि वो लोग साथ में रहते हैं. कौन? नेचर में एनिमल, प्लांट्स एंड माइक्रोब्स आइसोलेशन में नहीं रह सकते, बायोलॉजिकल कम्युनिटी बनाने के लिए अलग अलग वेज में इंटरेक्ट करते हैं. एंड दिस इंटरेक्शन दैट इज अराइजिंग फ्रॉम टू डिफरेंट स्पीसीज एंड इफेक्ट ऑफ अ स्पीसीज ऑन अदर स्पीसीज. मेरी वजह से आप पे क्या इफेक्ट हो रहा है, आपकी वजह से मुझ पे क्या हो रहा है, मेरी वजह से प्लांट्स पे क्या हो रहा है, प्लांट्स की वजह से एनिमल्स पे क्या हो रहा है. These kind of effects arising due to interaction of different species in a community is known as population interaction. Populations of course do not exist alone in nature क्योंकि एक single species से population नहीं बनता. We have individual for a single species, but then we have community, then we have population. Similar kind of species interacting in an area are known as populations. So they do not exist alone in nature. They interact in a way that it could be beneficial, detrimental or neutral. बेनिफिशियल भी हो सकती हैं उस तरह की इंटरेक्शन जो पॉजिटिव होंगी, डेट्रीमेंटल भी हो सकती हैं जो नेगेटिव होंगी, और न्यूट्रल भी हो सकती हैं. हो सकता है एक दूसरे पे किसी का कोई फायदा, किसी का कोई नुकसान नहीं हो रहा, ड्यू टू बट ड्यू टू सम और अदर रीजन दे आर इंटरेक्टिंग विद ईच अदर. And now we can have different types of interaction where we have interspecific and intraspecific.
The interspecific interactions occur among organisms of different species. You have inter-school meet, you have inter-college competitions. Then you can understand by that term inter मतलब दो अलग अलग चीजों के बीच में, not within the school, between different schools. So similarly, interspecific interaction is one in which different species of organisms are involved and it occurs for a specific requirement. Of course, किसी specific requirement के लिए इस तरह की interaction होगी क्योंकि लायन को कोई स्पेसिफिकली उसके लॉस ऑफ हैबिटेट या फूड की वजह से जरूरत पड़ेगी तो वो जेब्रा को खाएगा. सिमिलरली टाइगर जेब्रा को खाएगा या किसी और एनिमल को खाएगा. सिमिलरली मुझे प्लांट्स की जरूरत होगी बिकॉज आई नीड प्लांट्स, वेजिटेबल्स और फ्रूट्स. Just like that, due to loss of physical resources such as food and habitat, we have interspecific interaction and their effect is not so severe. Of course, a lion can kill a zebra for its need, but severe effects इसीलिए नहीं है क्योंकि किसी एक स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट के लिए कंपटीशन हो रहा है, हर एक तरह का कंपटीशन इन्वॉल्व नहीं है. But on the other hand, for intraspecific interaction, they occur among organisms of same species for all type of requirements. Habitat हो, food हो, living conditions हो, air हो, किसी भी तरीके के resources के लिए, हर तरीके के resources that they share, क्योंकि वो same species से belong करते हैं, उसके लिए इस तरह की interaction होगी due to overpopulation or increase in their requirements, and it has severe effects. Just like two bulls fighting to beat the competition to get more customers. Now, talking about the sign language of interactions, in case of mutualism, we have positive signs both way because it is beneficial interaction. In this case, both the species A and B or two different species will be benefited from each other. Similarly, in case of competition, it will be exact vice versa. Both the species are involved, but both have negative effect on each other. Due to competition, both of them will have losses and it will be negative signs. For predation, it will be plus minus because a prey that will be captured and a predator जो उसका शिकार करना चाहता है, उनके बीच में इंटरेक्शन होगा तो जो शिकारी है उसको ऑफ कोर्स फायदा मिलेगा क्योंकि it will capture the prey, but जो capture है it will be killed. That is why predation has plus minus effect. Similarly, parasitism will have plus minus effect क्योंकि पैरासाइट के केस में भी जो पैरासाइट है जो दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है उसको फायदा मिल रहा है, लेकिन जिस पे डिपेंडेंट है उसको नुकसान हो रहा है, दैट इज द होस्ट स्पीसीज. तो दिस इज प्लस माइनस इंटरेक्शन. In case of commensalism and amensalism, it will have पॉजिटिव जीरो एंड नेगेटिव जीरो इफेक्ट क्योंकि कमेंसलिज्म के केस में एक स्पीसीज को सिर्फ फायदा मिलेगा, दूसरे को ना फायदा होगा ना नुकसान होगा. बट इन केस ऑफ एमेंसलिज्म सिर्फ एक ही स्पीसीज को नुकसान होगा और दूसरे को ना फायदा होगा ना नुकसान होगा. So these kind of population interactions occur in nature, in a habitat, in a population, in between the organisms, and now we will talk the details of these interactions. First, moving on to the predation. This is known as consumption of one living organism, that is the prey, by another organism, that is the predator, but it excludes two things, scavenging and decomposition. तो पहले हम इन्हीं की बात कर लेते हैं कि क्यों दो चीजों को प्रेडेशन से एक्सक्लूड कर दिया गया है, और वो दो चीजें कौन सी हैं, स्कैवेंजिंग एंड डिकम्पोजिशन. एक्सक्लूड इसलिए कर दिया गया है क्योंकि स्कैवेंजिंग के केस में देयर इज नो डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट ऑफ वन स्पीसीज. स्कैवेंजर्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को कंज्यूम करते हैं जिनको या तो नेचुरल डेथ मिली हो या उनको किसी और ऑर्गेनिज्म ने मारा हो. सो स्कैवेंजर डायरेक्टली किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म को हार्म नहीं पहुंचा रहा है. इनफैक्ट इस एक ऐसे ऑर्गेनिज्म को इट इज गोइंग टू कंज्यूम जो ऑलरेडी या तो नेचुरल डेथ से मर गया है या तो किसी और ऑर्गेनिज्म की वजह से मर गया है. सो इन दिस केस देयर इज नो प्रेडेशन. शिकारी नहीं था स्कैवेंजर, उसने सिर्फ उस ऑर्गेनिज्म को कंज्यूम किया जिसको ऑलरेडी हार्म मिल चुका है, उसकी वजह से उसे हार्म नहीं हुआ, उसने ऑलरेडी हार्म्ड ऑर्गेनिज्म को कंज्यूम किया. देन वी हैव डीकम्पोजर्स. डीकम्पोजर्स का सिंपली काम है ऑर्गेनिक मैटर को इनऑर्गेनिक में कन्वर्ट करना, वो भी किसी और के फायदे के लिए, नॉट बिकॉज ऑफ देम. बैक्टीरियाज एक्टिंग इन द सोइल, they just decompose
the matters in soil, organic nutrients are converted into inorganic ones so that plants can consume them. So these are the kinds of decomposers. इसीलिए decomposition भी कोई harm अपने फायदे के लिए किसी को नहीं कर रहा है, वो dead and decayed matter जो है उसको ही decompose कर रहा है, and that's why these two type of mode are excluded from predation. तो this question can be asked कि कौन से ऐसे दो मोड हैं जो प्रेडेशन नहीं होते, एंड इफ नॉट देन व्हाई नॉट. सो यू मस्ट नो द आंसर्स. देन व्हाट इज प्रेडेशन? दिस इज द कंजप्शन ऑफ वन लिविंग ऑर्गेनिज्म. जब एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म को कंज्यूम करता है, मतलब प्रे को प्रेडेटर कंज्यूम करता है, शिकारी अपने शिकार को पकड़ता है, कंज्यूम करता है. द एक्ट ऑफ कैप्चरिंग, किलिंग एंड ईटिंग. पहले कैप्चर करना, फिर उसको मार देना और फिर उसको खाना. दिस इज नोन एज प्रेडेशन. बट अगर प्रेडेटर बहुत ज्यादा एफिशिएंट है और अपने प्रे को ओवर एक्सप्लॉइट कर देता है, फॉर एग्जाम्पल लॉयन को ये लगता है कि मैं कितने भी हिरन खा सकता हूँ, और वो खाता जाता है, खाता जाता है, खाता जाता है, देन व्हाट विल हैपन? तो प्रे एक्सटिंक्ट हो जाएगा, प्रे लुप्त हो जाएगी, उसकी प्रजाति, द स्पीसीज विल बी एक्सटिंक्ट, खत्म हो जाएगा. और जब वो प्रे खत्म हो जाएगा तो उस वजह से जो प्रेडेटर है उसको भी फूड की कमी हो जाएगी और वो भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि जब उसका खाना ही नहीं बचा तो वो कैसे बचेगा? दिस इज द रीजन व्हाई प्रेडेटर्स इन नेचर आर प्रूडेंट. अगर वो क्रूशियल हो गए, क्रूअल हो गए, खाते चले गए, ओवर एक्सप्लॉइट करते चले गए, खुद को ज्यादा एफिशिएंट समझते हुए, तो क्या होगा कि प्रे तो मरेगा ही मरेगा, उसके साथ साथ वो खुद भी मर जाएंगे. इसीलिए वो प्रूडेंट होते हैं, थोड़ी सी केयर शो करते हैं अपने प्रे की तरफ, ताकि अपने फ्यूचर के बारे में सोच सकें. अब कुछ एग्जाम्पल्स हैं प्रेडेशन के. दैट इज, द फर्स्ट एग्जाम्पल इज हर्बीवोरी, इन विच एनिमल्स प्रे ऑन ऑटोट्रॉफ्स. आपने बहुत सारे एनिमल्स को देखा होगा दैट ईट प्लांट्स. फॉर एग्जाम्पल रैबिट इट्स कैरेट. तो हर्बीवोरी ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन जहां पे प्लांट्स पे एनिमल्स डिपेंडेंट होते हैं. एनिमल्स प्रे ऑन ऑटोट्रॉफ. एनिमल्स का शिकार कौन होता है? ऑटोट्रॉफ्स, जो अपना खुद खाना बनाते हैं. दैट आर प्लांट्स ऑफ कोर्स. So herbivore is also an example of predation. अब आप predation को avoid कैसे करेंगे? There are various mechanisms. The first one is morphological. Avoid क्यों करना है आपको? क्योंकि आपको consume कर लिया आप खत्म हो जाओगे, इसीलिए आपको avoid करनी है predation. कैसे avoid कर सकते हो? The first is morphological. आउटर एडेप्टेशन, अपनी बॉडी के एक्सटर्नल फीचर्स की कुछ ऐसी एडेप्टेशन कर लो कि अवॉइड कर सको. द फर्स्ट एग्जांपल इज ऑफ क्रिप्टिक कलरेशन और कैमोफ्लेज. यू मस्ट हैव सीन कैमेलियन, जिसको आप गिरगिट भी बोलते हैं, करेलिया भी बोलते हैं. वो अपने रंग बदल लेता है, यू वुड हैव सीन. तो क्रिप्टिक कलरेशन और कैमोफ्लेज इज फर्स्ट टाइप ऑफ एडेप्टेशन टू अवॉइड प्रेडेशन, जहां पे प्रे अपना खुद को डिफिकल्ट बना लेता है ताकि उसको प्रेडेटर स्पॉट ना कर सके. क्योंकि जिस भी विजुअल बैकग्राउंड में वो प्रे प्रेजेंट है, वो स्पीसीज प्रेजेंट है जिसको प्रेडेशन से बचना है, उस विजुअल बैकग्राउंड के रिजेंबलिंग वो अपने कलर और पैटर्न को चेंज कर लेता है. फॉर एग्जाम्पल कमेलियन, करेलिया या गिरगिट अपना रंग बदल लेता है. मान लो वो घास में है तो वो अपने आप को हरा शो करने लगता है. इट विल be creating its green color because of green grass, जिसकी वजह से पता नहीं चल पाएगा कि where that chameleon is. तो उसको जब predator support नहीं कर पाएगा तो वो बच जाएगा. Then the next mechanism is aposematic coloration. What happen in aposematic coloration is कि कुछ insects या frog के ऐसे species होते हैं that are bright colored and are poisonous. ब्राइटली कलर्ड हो जाते हैं और पॉइजनस हो जाते हैं, तो उनको प्रेडेटर अवॉइड कर देते हैं. And the next mechanism is mimicry, जिसके केस में दो मिमिक्रीज होती हैं. वन इज Batesian and another one is Mullerian. In case of Batesian mimicry, there is a famous example of monarch butterfly. monarch butterfly जो होती है उसको एक बर्ड खाता है, मतलब एक बर्ड का शिकार होती है monarch butterfly.
लेकिन उस मोनार्क बटरफ्लाई में उसके डेवलपमेंटल स्टेज में, जब वो कैटरपिलर स्टेज में थी, उसी टाइम पे मोनार्क बटरफ्लाई एक प्लांट पे फीड करती है अपने न्यूट्रिएंट्स के लिए, एंड दैट प्लांट इज पॉइजनस मिल्कवीड। उस पे फीड करने की वजह से दैट वीड इज ऑल्सो नोन एज कैलोट्रोपिस। दूध निकलता है उस प्लांट से, ऐसा आम भाषा में बोला जाता है। आपने देखा होगा घरों के आसपास कहीं थोड़ा खाली एरिया होता है, वहां पे प्लांट कॉमनली ग्रो करता है, आक बोलते हैं कॉमन लैंग्वेज में। दिस इज ऑल्सो नोन एज कैलोट्रोपिस साइंटिफिकली। वो मिल्क वीड होती है, उस पे ये मोनार्क बटरफ्लाई फीड करती है, और उसको फीड करने की बजाय मोनार्क बटरफ्लाई के डेवलपमेंटल कैटरपिलर स्टेज में उसके अंदर एक फीचर एक्वायर हो जाता है। दैट फीचर इज इस मिल्क वीड प्लांट से, जो कि पॉइजनस है, मोनार्क बटरफ्लाई को एक स्पेशल केमिकल मिल जाता है जो उस बटरफ्लाई के लिए पॉइजनस नहीं होता, घातक नहीं होता, लेकिन जो उस मोनार्क बटरफ्लाई पे फीड करेगा उसके लिए दैट इज डिसटेस्टफुल एंड हार्मफुल। इट क्रिएट्स प्रॉब्लम इन द गट ऑफ दैट बर्ड दैट विल प्रिडेट ऑन मोनार्क बटरफ्लाई। तो उस केमिकल को बोलते हैं कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स। So the monarch butterfly is highly distasteful to its predator, that is a bird, because of a special chemical cardiac glycoside present in its body. Interestingly, the butterfly acquires this chemical during its caterpillar stage by feeding on a poisonous milkweed that is known as Calotropis. Similarly, there is Mullerian mimicry. Mullerian mimicry के केस में क्या होता है कि एक ऑर्गेनिज्म दूसरे जैसा दिखने लग जाता है, that is offensive and obnoxious. For example, bees, wasps and hornets. कहने का मतलब ये है कि ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म जैसे ही दिखने लग जाते हैं, जो कि ऑफेंसिव होता है, बड़ा गुस्सा सा आता है उसको देख के, ऐसा लगता है कि यार समझ ही नहीं आ रहा है कि ये क्या हो रहा है। एंड ऑब्नॉक्शियस होते हैं, मतलब एक्सट्रीमली अनप्लेजेंट, बहुत ज्यादा नेस्टी से, बहुत ऑफुल से दिखते हैं, बहुत ही अजीब से दिखते हैं, ऑब्जेक्शन सी होती है उनको देख के। तो वो एक दूसरे जैसे दिखने लगते हैं। कहने का मतलब है बीज, वास्प्स और हॉर्नेट्स ये सब एक दूसरे जैसे दिखते हैं, आपको पता नहीं चलता है कि कौन सा किस जैसा है। तो उस वजह से प्रीडेटर से वो बच जाते हैं, बिकॉज समटाइम व्हाट प्रीडेटर थिंक इज कि नहीं ये मेरा नहीं है, मेरे को दूसरे को लेना है, लेकिन होता वो उसी का है जिसको उसको कंज्यूम करना था, बट क्योंकि वो दूसरे जैसा दिख रहा है इसीलिए वो बच जाता है। एंड अनदर एडेप्टेशन to avoid predation is in plants. Thorn या thorns होते हैं अकेशिया और कैक्टस में, that are the modified stems into spines. कांटेदार झाड़ियां होती हैं अकेशिया के केस में और कैक्टस में, जो कि मोस्ट कॉमन मॉर्फोलॉजिकल मीन्स है बचने का, डिफेंस का। एंड सिमिलरली, जैसा कि मैंने बेसियन मिमिक्री के केस में बताया कि कुछ प्लांट्स को कंज्यूम करती हैं बटरफ्लाई, तो सिमिलरली कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिन पे, ताकि जो हर्बीवोरस एनिमल हैं वो उन पे फीड ना कर सकें, इसीलिए प्लांट्स प्रोड्यूस करते हैं और स्टोर करते हैं ऐसे केमिकल्स को कि हर्बीवोर अगर उसको खाएगा तो उससे उसकी फीडिंग और डाइजेशन इनहिबिट हो जाएगी, वो सिक हो जाएंगे, उनके गट में प्रॉब्लम हो जाएगी, इंटेस्टाइन में प्रॉब्लम हो जाएगी। तो क्या होगा कि उस एनिमल की रिप्रोडक्शन साइकिल भी डिस्टर्ब होगी और हो सकता है वो मर भी जाए। तो ऐसे जो प्लांट्स हैं जो अपनी खुद का बचाव करते हैं एनिमल्स से, वो कैसे करते हैं? बाय प्रोड्यूसिंग एंड स्टोरिंग केमिकल्स, पॉइजनस केमिकल्स सच एज इन वीड कैलोट्रोपिस, क्योंकि उसमें कौन सा है, कार्डियक ग्लाइकोसाइड नाम का पॉइजन प्रेजेंट होता है। तो इसीलिए कोई भी कैटल या कोई भी गोट आपको आसपास नजर नहीं आएगी कैलोट्रोपिस के जो उसको खाती हो, बिकॉज इट वुड हैव नोन कि दैट इज डिसटेस्टफुल एंड हार्मफुल टू दैट एनिमल। Now, the next population interaction is competition, where you have interspecific and intraspecific. The interspecific occur between two different species. Intraspecific occur between individuals of same species. In case of interspecific competition, what happens is growth and survival of one species is negatively affected. एक स्पीसीज की ग्रोथ भी और उसका सर्वाइवल भी नेगेटिवली इफेक्ट होता है दूसरे स्पीसीज की वजह से, इधर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। इन केस ऑफ डायरेक्टली वी कॉल इट एज इंटरफेरेंस कंपटीशन, एंड इन केस ऑफ इनडायरेक्ट वी कॉल इट एज एक्सप्लॉइटेशन।
अगर कोई स्पीसीज दूसरे स्पीसीज को एक्सप्लॉइट कर रहा है, इट मींस इनडायरेक्ट कंपटीशन इज देयर। लेकिन अगर डायरेक्टली ही अफेक्ट कर रहा है कि एकदम मार दिया उसको, कैप्चर कर लिया, किल, मतलब जस्ट डायरेक्टली ऐसे compete किया उसे कि उसको मारना ही था, then it is known as interference competition. But in case of intraspecific, this is more intense than interspecific competition because वो same species से belong करते हैं, तो उनकी requirement भी almost similar है, इसीलिए वो ज्यादा fiercely, ज्यादा energy के साथ, ज्यादा arrogance के साथ compete करेंगे, and in that case it will be more severe. Now I have shown you two diagrams here that is representing P. aurelia and P. caudatum. You would have heard about Paramecium, that is ciliated organism. Paramecium के दो different species हैं, Paramecium aurelia and Paramecium caudatum, जहाँ पे होता है competitive exclusion. कंपटीशन हो रहा है इनके बीच में। जब सेपरेट कल्चर में आप इनको ग्रो करेंगे तो जो रिलेटिव पॉपुलेशन डेंसिटी है वो कंपैरेटिवली कांस्टेंट है विद रिस्पेक्ट टू नंबर ऑफ डेज, और उसके बाद एक अलग तरीके का ग्राफ आ रहा है, थोड़ी सी पॉपुलेशन डेंसिटी उसकी ज्यादा है, किसकी, पी ऑरेलिया की, जिसको रेड लाइन से रिप्रेजेंट किया है इन फर्स्ट डायग्राम लेफ्ट हैंड साइड। while in right hand side what happened, जब उनको combined culture दे दिए, जब वो दोनों को एक साथ बैठा दिया तो उनके बीच में competition हो जाएगा, जिसकी वजह से पी कोडेटम की ग्रोथ इनहिबिट हो जाएगी, उसका ग्रोथ और सर्वाइवल इनहिबिट हो जाएगा ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ पैरामीशियम ऑरेलिया इन दैट सेम कल्चर। पैरामीशियम ऑरेलिया का ग्राफ देखिए कहाँ जा रहा है, और पैरामीशियम कोडेटम का ग्राफ एकदम नीचे आ गया है। This is in case of combined culture क्योंकि उनके बीच में competition हो गया। This is also known as competitive exclusion principle, in which I will talk about the details in upcoming videos. Then you have next mode of nutrition, that is interaction, that is known as parasitism. Relationship between two species of plants or animals जिसमें एक के एक्सपेंस पे दूसरे को फायदा हो, बट कभी कभी ऐसा भी हो सकता है विदाउट किलिंग द होस्ट ऑर्गेनिज्म, जरूरी नहीं है कि होस्ट ऑर्गेनिज्म मरेगा इस केस में। दिस इज नोन एज पैरासिटिज्म। Many parasites have evolved to be host specific. ऐसे बहुत सारे पैरासाइट्स हैं जिन्होंने खुद को इवॉल्व कर लिया है, वो होस्ट स्पेसिफिक हो गए हैं, सिर्फ एक सिंगल स्पीसीज ऑफ होस्ट को ही पैरासिटाइज करते हैं in such a way that both host and parasite tend to co-evolve, और इस तरीके से करते हैं कि होस्ट और पैरासाइट दोनों ही co-evolve होने लगे हैं, क्योंकि होस्ट को पता चला कि अच्छा ये मुझ पे पैरासिटाइज करने के लिए खुद को इवॉल्व करके आया है, तो होस्ट ने क्या करा, अपनी बॉडी में ऐसे मैकेनिज्म डेवलप करे कि उसकी बॉडी भी इवॉल्व हो गई अपने पैरासाइट के साथ साथ। तो अगर होस्ट में स्पेशल मैकेनिज्म आ जाए रिजेक्ट करने के और रेजिस्ट करने के पैरासाइट को, तो जो पैरासाइट है उसने भी मैकेनिज्म ऐसे अपने इवॉल्व कर लिए हैं कि वो काउंटरएक्ट कर सके और न्यूट्रलाइज कर सके उन कैरेक्टरिस्टिक्स को जो होस्ट के अंदर आए हैं, ताकि वो उसी सेम स्पीसीज के साथ सक्सेसफुल हो सके। कहने का मतलब क्या है, बोथ आर मेकिंग देमसेल्व्स इंटेलिजेंट, बोथ आर डूइंग and adapting special mechanism to be successful with each other, to co-evolve with each other. For example, parasites evolved special adaptations. Parasite में special adaptations आई हैं. For example, the loss of unnecessary sense organs. वो sense organs जो उनको चाहिए ही नहीं है, उनका loss. Presence of adhesive organs or suckers to cling on to the host. सकर्स या चिपकने वाले ऑर्गन्स की प्रेजेंस आ गई है ताकि वो होस्ट पे क्लिंग कर सकें, चिपक सकें। देन दे हैव लॉस्ट द डाइजेस्टिव सिस्टम और रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी हाई हो गई है। डाइजेस्टिव सिस्टम की जरूरत नहीं है, अपना खुद का डाइजेस्टिव सिस्टम लूज कर दिया है क्योंकि होस्ट के ऊपर डिपेंडेंट हो गए हैं न्यूट्रिएंट्स के लिए, और रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी बहुत ज्यादा कर दिया है ताकि अंदर जाके रिप्रोड्यूस कर सके और प्रॉब्लम क्रिएट कर सके होस्ट के लिए। द लाइफ साइकिल्स ऑफ पैरासाइट्स आर ऑफन कॉम्प्लेक्स। पैरासाइट के लाइफ साइकिल्स यूजुअली कॉम्प्लेक्स होते हैं, एक या एक से ज्यादा इंटरमीडिएट होस्ट या वेक्टर भी इन्वॉल्व होते हैं इससे पहले कि वो किसी प्राइमरी होस्ट के पास पहुंचे। फॉर एग्जाम्पल द ह्यूमन लीवर फ्लूक। ह्यूमन लीवर फ्लूक एक ट्रेमाटोड पैरासाइट होता है दैट क्रिएट्स डिजीज इन ह्यूमन बाय parasitizing the human liver. Okay,
तो ह्यूमन लीवर फ्लूक में क्या है, उसका भी लाइफ साइकिल कम्प्लेक्स है। दो इंटरमीडिएट होस्ट होते हैं। अगर आपके लीवर और बाइल डक्ट पे एक्ट कर गया है पैरासाइट, देन इट क्रिएट्स प्रॉब्लम। तो लीवर फ्लूक की वजह से आपका जो ये है लीवर है, उसके अंदर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। ऑल्दो इरेडिकेट किया जा सकता है लीवर फ्लूक को। यूजुअली एक ड्रग होती है दैट इज नोन एज ट्रिकाबेंडाजोल, वो दे दी जाती है। उस ट्रिकाबेंडाजोल की वजह से ये जो लीवर फ्लूक्स हैं ये मर जाते हैं। तो बेसिकली हम बात ये कर रहे हैं कि पैरासिटिज्म के केस में एडेप्टेशन कैसी आई है। तो एडेप्टेशन की अगर हम बात करें तो जो लीवर फ्लूक है वो एडप्ट तो किया है, लेकिन उसके अंदर बीच में दो इंटरमीडिएट होस्ट आते हैं इससे पहले कि वो ह्यूमन में आके अपने लाइफ साइकिल को कंप्लीट करे। एंड प्लेटीहेलमिन्थेस होता है, ये एक तरह का फ्लैट वॉर्म बोलते हैं। यू मस्ट हैव रेड अबाउट दिस इन एनिमल किंगडम। तो ये जो ह्यूमन लीवर फ्लूक है ये दो अदर इंटरमीडिएट होस्ट पे भी डिपेंड करता है, दैट इज स्नेल एंड फिश। Now, the another malarial parasite that is also known as Plasmodium that needs a vector, female Anopheles mosquito, to spread to other host. मलेरिया किससे होता है? फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो से होता है, लेकिन होता वो एक्चुअल में फीमेल मॉस्किटो से नहीं है, क्योंकि फीमेल मॉस्किटो आती है एज अ वेक्टर, इंटरमीडिएट होस्ट होती है। वो किसकी? मलेरियल पैरासाइट की। बट मलेरियल पैरासाइट इज नोन एज प्लाज्मोडियम। So the type of parasites are ecto and endoparasites. Ectoparasites ऐसे होते हैं जो होस्ट ऑर्गेनिज्म से पे बाहर से डिपेंड करते हैं, बाहर से फीड करेंगे। एंडो ऐसे होते हैं जो बॉडी के अंदर एंटर करके एक्ट करते हैं। एक्टोपैरासाइट के एग्जांपल लाइस ऑन ह्यूमंस, जुएं हो जाती हैं बालों में। टिक्स ऑन डॉग्स, टिस्सू भी बोलते हैं नॉर्मल लैंग्वेज में, टिक्स बोलते हैं, टिक्स हो जाती हैं डॉग की बॉडी पे। मरीन फिश इन्फेस्टेड विद एक्टोपैरासिटिक कॉपपोड्स, मैरीन फिश होती हैं जिनको एक्टोपैरासिटाइज करते हैं कॉपपोड्स, वो फिशेस पे प्रेजेंट होते हैं। द कॉपपोड्स आर बेसिकली ए स्मॉल ग्रुप ऑफ क्रस्टेशियंस जो कि फ्रेश वाटर या साल्ट वाटर हैबिटेट में मिलते हैं। दिस इज अ टाइप ऑफ आर्थ्रोपोड। तो वो मैरीन फिशेस के ऊपर होते हैं। कस्कुटा आपने देखा होगा अपने आसपास, बहुत ग्रो करता है, येलोइश कलर का प्लांट होता है, ऑल्सो नोन एज अमरबेल। वो हेज प्लांट्स के ऊपर ग्रो करता है एंड दैट इज ऑल्सो अ पैरासिटिक प्लांट। बट ऑन द अदर हैंड एंडोपैरासाइट की बात जब हम करते हैं तो वो बॉडी के अंदर जाके एक्ट करते हैं, लीवर में, किडनी में, लंग में, रेड ब्लड सेल्स एक्सेट्रा में। एंड द एग्जांपल्स आर टेपवर्म एंड लीवर फ्लूक्स दैट कॉज मेनी devastating disease in humans. Now the question arises that the female mosquito is not considered a parasite although it needs our blood for reproduction. फीमेल मॉस्किटो को पैरासाइट कंसिडर नहीं किया जाता है, हालांकि वो अपने रिप्रोडक्शन के लिए हमारे ब्लड को यूज करती है। कैन यू एक्सप्लेन व्हाई? द फर्स्ट रीजन बिहाइंड दिस इज दैट फीमेल मॉस्किटो इज अ वेक्टर। वो करियर ऑफ डिजीज है, कॉजल ऑर्गेनिज्म ऑफ डिजीज नहीं है। हम जो कि होस्ट हैं ह्यूमंस, हम में डिजीज हो रही है, हम इफेक्ट भी हो रहे हैं ड्यू टू मलेरिया। अगर हम बात करें फीमेल मॉस्किटो एनाफिलिस की, सिमिलर तरीके से डेंगू होता है, दैट इज ड्यू टू अनदर फीमेल मॉस्किटो एडीज इजिप्टाई। लेकिन उस केस में हम लोगों को बीमारी फैलाने वाला ऑर्गेनिज्म तो मॉस्किटो है, लेकिन वो क्रिएट करने वाला प्रॉब्लम मॉस्किटो नहीं है, दैट इज अ मलेरियल पैरासाइट और डेंगू पैरासाइट। In case of malaria parasite we have Plasmodium vivax. प्लाज्मोडियम की वजह से डिजीज हो रही है, ना कि फीमेल मॉस्किटो की वजह से। वो सिर्फ एक करियर है, कोजल ऑर्गेनिज्म नहीं है, इसीलिए दैट इज नॉट अ पैरासाइट। अदर देन दैट वो हमारी बॉडी पे रिप्रोडक्शन के लिए उसको ब्लड चाहिए है, न्यूट्रिएंट्स के लिए नहीं। इट डज नॉट डिपेंड ऑन ब्लड फॉर न्यूट्रिशन। पैरासाइट्स न्यूट्रिशन के लिए डिपेंड करते हैं, रिप्रोडक्शन के लिए फीमेल मॉस्किटो बॉडी को यूज कर रही है, अपने न्यूट्रिशन के लिए यूज नहीं कर रही है। दिस इज द रीजन दैट द फीमेल मॉस्किटोज आर नॉट कंसिडर्ड पैरासाइट। ऑन द अदर हैंड, टॉकिंग अबाउट ब्रूड पैरासिटिज्म, ब्रूड पैरासिटिज्म के केस में what happens is this is also a fascinating example of
पैरासिटिज्म। कौन सा? ब्रूड पैरासिटिज्म। क्योंकि ब्रूड पैरासिटिज्म के केस में क्या होता है कि parasitic bird lays its eggs in nest of its host and lets the host to incubate them. आपने देखा होगा कुछ ऐसी बर्ड्स होती हैं जो अपनी एग्स दूसरे बर्ड के घोंसले में डाल देते हैं और वो दूसरे बर्ड ही उसको उनके एग्स को इंक्यूबेट करते हैं और उनका ख्याल रखते हैं। तो इस तरह का जो एग्जाम्पल होता है ब्रूड पैरासिटिज्म, कोयल और कौवा, कुको एंड क्रो के बीच में भी आपने इसके बारे में सुना होगा। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ ब्रूड पैरासिटिज्म, जहां ये भी एक फैसिनेटिंग एग्जाम्पल है पैरासिटिज्म। So by this thing, we are done with our today's slide. We will discuss another things our next class, where we will talk in detail about the cases of amensalism, commensalism, parasitism, and today we talked about mutualism, competition, and predation. Rest all interactions will be talked about in the next video, in the next classes. By this, we are done with 3 topics of population interaction, and for this, I would like to thank you to watch this video. Kindly please keep watching the videos. If you like, then do like the videos. But please don't forget to share and subscribe the channel Ishita's Botanic. Watch the videos, share these videos with your friends, colleagues, and other mates, so then they can also get benefit and they can also watch the videos. Thank you for following. Thank you for watching the video. Make your notes, ask out your doubts, tell your feedback and suggestion in comment box. Thanks for watching Ishita's Botanic. Take care, keep learning, happy learning. See you in the next video.